Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. This is the second part of the video from class 6th Maths NCERT related solutions. In this we are solving the second exercise of chapter 1, that is knowing our numbers. Those who haven't seen the first video, please check the description box for the link for the NCERT Mathematics class 6th solutions. It will help you a lot as we all provide a detailed explanation with complete solution of each and every question in your NCERT textbooks. फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन देयर अपकमिंग न्यू सेशन. All of you must have started studying for the new session. So the first chapter, which was knowing our numbers, exercise 1.1, we have already completely solved. You can check in the description box. Now we are starting with exercise 1.2. So this exercise is based basically on the word problems, and we will understand how do we apply various operations which all alphabets or which all words signify whether you need to add, you need to subtract, or you need to perform any other related operation. So let us start with the very first question from our textbooks. Please open your textbooks along with me. A book exhibition was held for 4 days in a school. एक book exhibition हुई स्कूल में 4 दिनों के लिए. The number of tickets sold, right? So the number of tickets sold at the counter on the first day, second day, and the third day, and final day were respectively one, like this, right? So find the total number. Now when it says total, you always need to add. So remember one thing, when you are totaling, that means you are adding, right? Alright, let us write first the solutions of the statements. So tickets sold on various days. फर्स्ट डे सेकंड डे हमारे पास गिवन है तो हम लिख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट डे पे हमारे पास कितनी थी 1094, राइट. सेकंड डे पे हमारी कितनी थी 1812 एंड थर्ड डे पे हमारी थी 2050 एंड ऑन द फोर्थ डे we have 2751. Now they are saying ask calculate the total number of tickets. Now in order to calculate total number of tickets, we will add all of them, that is 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751. So इसको जो हम calculate करेंगे, let us calculate. 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7. So that will be 7,700. So this is my final answer. That is 7,707 tickets were sold on all the 4 days. So my answer statement, please write the answer statement. So the answer statement I am telling you, you need to write down in your notebooks. 7,707 tickets were sold on all 4 days, right? So this was the very first question from our exercise 1.2. Second question. Shikhar is a famous cricket player. He has so far scored these many runs in the test match. उसने test match में कुछ runs score करे, right? He wishes to complete 10,000 runs. उसने total runs उसके पास कितने हो गए? Total run he wishes to score, मतलब वो चाहता है, wishes to complete, not score, wishes to complete. वो चाहता है कि अपने टेस्ट मैच में वो एटलीस्ट 10,000 रन्स पूरे करे, लेकिन नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड सो फार अभी तक उसने कितने कर लिए, देखो 6,980. Now how many more runs does he require? How many more मतलब होता है obviously subtract, right? Please remember this. और how many मतलब subtract. So therefore runs required to complete, कैसे करेंगे, that is
10,000 हमारे पास बड़ी डिजिट है तो ऑब्वियसली वो ऊपर आएगी 6,980. So let me subtract 0. So this will be a 10, this will be 9, this will be a 9, this will be 0 because we took carry over. So 10 minus 8 is 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 3. So these many runs are required. 3,020 runs are required for Shekhar to become a famous cricket player. Easy, right? Please write down the complete solutions in your notebooks and revise your questions very carefully before your exam starts. Right? चलो आओ हम करते हैं थर्ड वाला question. In an election, the successful candidate registered is this many votes and his nearest rival scored this much. मतलब एक election है, एक candidate जो जीता है उसके पास कितने हैं? Let me write. So number of votes scored by, let me say winner. ठीक है, winner हो गया ना वो election का, तो कितने हैं उसके पास? 5,77,500, राइट. और number of votes उसके scored बाय राइवल मतलब उसका ओपोनेंट, राइट. ओपोनेंट ने कितने करे? 3,48,700. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मतलब उसके कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है, राइट. सो लेट मी राइट देयरफॉर डिफरेंस इन वोट्स ऑफ बोथ. ठीक है, that is, let me subtract. I'm writing both the numbers. 3, right. So when I subtract, what will I get? So that is 2,28,800. So this is the difference of votes between the winner and the rival opponent team, राइट. सो उन्होंने कितने करे? 5,77,500 से वो जीता, ठीक है. और नंबर ऑफ स्कोर कितना, राइवल ने कितना करा, राइट. तो कितना आ गया? 3,48,700. दोनों का डिफरेंस निकालो तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 2,28,800, राइट. चलो जी आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन. बहुत आसान है क्वेश्चंस. ओके. Kriti bookstore sold these many worth rupees books in the first week of June and book in the second week of month. ठीक है, how much was the sale for the 2 weeks together? पहले तो together का जैसी मतलब आया तो मतलब हो गया add, ठीक है. उसके बाद in which week was the sale greater and by how much? अब हमें सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे. पहला हम लिख लेते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमको लिखनी है, ठीक है. अमाउंट ऑफ रुपीज है ना, अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना. तो कितनी है वो लिख लेते हैं. रुपीज कितना है? 2,85,891. और अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, राइट. कितना हो गया? रुपीज 4,768, राइट. अब हमको टोटल निकालना है. सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ पे, मतलब लेट मी राइट फर्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. और सेकंड में हमें बताना है कौन सा विनर था और कितना डिफरेंस था, ठीक है. तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को हाफ में, राइट. तो यहाँ पे हम ऐड करता है रुपीज से रुपीज जरूर लिखें, भूलें नहीं रुपीज लिखना. 91 रुपीज. ऑपरेशन का साइन नहीं लगाना भूलना, राइट. ओके. 768. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज 6,86,659. अब आपको देखने में ही लग रहा होगा सेकेंड वीक में ज़्यादा है ना, तो इसमें फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो जाएगा कि सेकेंड वीक सेल वॉज ग्रेटर, ठीक है. अब कितनी ग्रेटर थी, कैसे करेंगे? दोनों का डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालो. कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जो बड़ा है वो ऊपर आएगा. रुपीज
4 lakh and 285891। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा यहाँ पे आंसर 1,14,877, राइट। सो हमारे पास दो आंसर्स हमारे यहाँ पूछे गए थे। फर्स्ट था हाउ मच वॉज द सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर, तो हमने बता दी वो सेल ऑफ 2 वीक्स ये रही हमारी ए पार्ट, ठीक है। और हमारा बी पार्ट इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो हमारा सेकेंड वीक में स्केल ज़्यादा थी और कितने से ज़्यादा थी, 1,14,877 रुपीज़ से ज़्यादा थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है। वीडियो को एंड तक देखो तभी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ पाओगे एंड इतनी अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कोई भी नहीं समझा सकता। इस वीडियो को आराम से देखिए एंड प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करते चलें एंड शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको और भी हेल्प होगी, राइट। आ जाइए 5th क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits। तो हमको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखने पे आते हैं ना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो इसमें हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दो, दैट इज 7 6 4 3 2। हाँ, ओनली वंस बोला है ना। फिर उससे बोला है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या होता है हम उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग में, राइट। दैट इज हमने यहाँ पे अरेंज करा था फ्रेंड्स डिसेंडिंग में, ओके। एंड हम यहाँ पे अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग में, राइट, ओके। असेंडिंग में कैसे हो जाएगा 2 3 4 6 7। तो वो बोल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हमेशा होता है सब्ट्रैक्ट करना, राइट। सो देयरफॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना निकलेगा, लेट मी सी। Difference is equal to 76432 minus 23467, right? So here the difference will become as 52,965. So this is my answer. And how did I write? Greatest 5-digit number is written in the descending order and the smallest 5-digit number is written in the ascending order, right? चलो जी आ जाओ 6th question पे ना। 6th क्वेश्चन अच्छा लग रहा है थोड़ा सा देखने में, इंटरेस्टिंग साउंड करने वाला है ये। देखो कैसे, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर दीज मेनी स्क्रूज अ डे। एक दिन में कितने स्क्रूज करता है, साथ में साथ हम जरूर इसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, राइट। सो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, ठीक है। इन 1 डे में हमारे पास कितने गिवन है 2825, दैट इज 825। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। ना जनवरी में कितने डेज होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज पहले लिखते हैं हम नंबर, एक दिन के तो हमारे पास स्क्रूज पता है, ठीक है। अगर हमें जनवरी के ढूंढने हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी कितने होते हैं 31 ऑब्वियसली। सो अगर हमारे एक दिन का पता है, हमें एक दिन का पता है और हमें 31 का निकालना है, सो दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू अ लार्जर नंबर, वी आर ऑलवेज मल्टीप्लाइंग, तो याद रखें हमेशा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी कैसे निकालेंगे, वी विल 2825 multiplied by 31, right? Let me see, 5 ones are 5, 2, 8, 2, 8, 2, 3 5s are 15, 1, 3 2s are 6, 7, 3 is 24, 2, 3 2s are 7, 8, right? So here my answer will become 8 plus 8, 16, 15, 4, 5, 6, 7, 8. So these many screws. So that is 8,700,575 is the total number of screws which were manufactured in the month of January, right? So this is based on multiplication, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करा, एक दिन का पता था 31 डेज का निकाल पाए। अगर आपको टुगेदर बोला तो आपने एडिशन करा, डिफरेंस करा तो आपने सब्ट्रैक्ट करा। आइए देखते हैं आगे। A merchant had this much amount with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after purchase? उसके पास कुल मिला के इतने पैसे थे। देखो ये कैसा क्वेश्चन है।
सो टोटल, ये थोड़ा सा अच्छा लगने वाला क्वेश्चन, देखो कैसे। टोटल अमाउंट ऑफ, नहीं टोटल अमाउंट नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, लेट मी इरेज, टोटल अमाउंट शी हैड या मर्चेंट हैड, कुछ भी लिख सकते हो, रुपीज हाउ मच, 78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, सारी स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स कितनी होगी, 40। प्राइस ऑफ ईच सेट रुपीज़ 1200। देखो उसके पास 40 रेडियो सेट हैं, एक की प्राइस गिवन है। पहले हम सब फटाफट सबसे पहले प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 40 रेडियो सेट्स निकाला, कैसे निकालेंगे, रुपीज़ 1200 multiplied by 40, right? So I will get my answer as 48,000, और उसके पास कितना अमाउंट था, राइट। तो यहाँ पे करते हैं, therefore amount remained with her, क्या हो गया, अमाउंट का कितना बचा, टोटल कितना था उसके पास, 78,592। सब्ट्रैक्ट कर दो, उसने 48,000 किस पे खर्च कर दिया, अपने रेडियो सेट्स पे। कितना अमाउंट उसके पास बचा वो हमें डिटरमाइन करना है। तो उसके पास अमाउंट बचेगा यहाँ पे 30,592, राइट। कैसे करा, पहले 40 रेडियो सेट्स का हमने अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद टोटल अमाउंट से हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा, बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ गया, राइट। चलो 8th क्वेश्चन, यू हैव 12 क्वेश्चंस, राइट। आ जाओ। A student multiplied this number by 65 instead by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? ठीक है, कैसे करेंगे देखो। उसने क्या करा, 7,236 को 65 की जगह उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं, देखो कैसे करेंगे, करते हैं 0, राइट, 6 1 4 3 4, so the answer is 4703, राइट। उसके बाद 6144 08 1, ओके। सो हमारे पास आ गए दो आंसर्स, दोनों हमने करे मल्टीप्लाई। हाँ, बाय हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो दोनों में हम ढूंढेंगे डिफरेंस। कितना आ गया, 470340 सब्ट्रैक्टेड विद 40,000 5,000, we got the answer as 65,124। तो दिस, उसने क्या करा, गलती से 56 की जगह उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। Do you need to do the both multiplication? Yes, we need to do the both multiplication. So yes is the answer. Yes, we had to do both the multiplication, right? आ जाओ 9th question. To stitch a shirt 2 meter 15 meter cloth is required. एक शर्ट को बनाने में इतना चाहिए, 40 मीटर क्लॉथ में से कितनी शर्ट्स बन जाएगी और कितना कपड़ा बचेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट कितना है, 2 मीटर,
2 मीटर 15 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, डैट विल बिकम 215 सेंटीमीटर। 40 मीटर टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, आइए वो देखते हैं। टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर, तो हम मीटर को करेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो 40 इंटू 100 दैट इज 4000 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें बस 2 आ गई। अब हमें बताना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। सिंस हमें पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंस कैसे, देखो 215 डिवाइडेड बाय 4000, राइट। सो इट विल बी 1 से 215 1850, देन 18 से 1720, राइट। सो हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास ये पूरा नंबर है ना, ये होल नंबर है, तो 18 शर्ट्स हमारी पूरी बन जाएंगी, ठीक है। और क्लोथ लेफ्ट भी पूछा उसने, तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम बोल देते हैं क्लोथ लेफ्ट। 130 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, राइट। सो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। 18 शॉर्ट्स बन जाएंगी हमारे टोटल कपड़े में, और हमारे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा बच जाएगा, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़्यादातर पेपर में एग्जामिनेटर बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, राइट। मेडिसिन इज पैक्ड इन द बॉक्सेस ईच विंग, एक वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800? Total weight of box 100 kg, राइट। अच्छा, अब हम कैसे करेंगे इसका, हम पहले ग्राम में कर लेते हैं, दैट इज 4500 ग्राम, और इसको भी कर लेते हैं 5 जीरोज आएंगे, तो 1 3 4 5 हो गए, है ना। तो हमारे पास आ गए 5 जीरोज। अब कैसे करना है, अब देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्स से जोड़ने के लिए ज़्यादा पता है, एक बॉक्स का वेट पता है, तो हम कैसे करेंगे, वी विल डिवाइड, राइट। 2 3 4 5 77 से करेंगे तो 4500, राइट। 33500 7 31500, राइट। फिर बचा हमारे पास 3500 1000 3500, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है, इतना। सो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा बन गया, है ना। तो हमारे पास कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए 177, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, बिटवीन द स्कूल, ये उसका स्कूल है, ठीक है, ये उसका घर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1, 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, ठीक है। पहले तो हम एक दिन का ढूंढ लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इन, है ना, 1 किलो, ठीक है, 1875 इंटू 2 करेंगे, मीटर में आ जाएगा हमारे पास। एक दिन का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम 6 दिन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसका, बिल्कुल ठीक निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 6 1 डे का डिस्टेंस। अब हमें कितने दिन का निकालना है, डिस्टेंस इन
6 days, है ना। क्वेश्चन हमें कह रहा है 6 में, एक दिन का पता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3750 मल्टीप्लाइड बाय 6। यूनिट्स नहीं भूलना, बिना यूनिट्स के आंसर्स आपके गलत आएंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 22,500 मीटर, और हम इसको कन्वर्ट कर दिया अगर किलोमीटर में तो दैट विल बी 22 किलोमीटर 500 मीटर, राइट। दिस इज माई फाइनल आंसर. So this is the final answer, 22 kilometer 500 meter. We are left with the very last question for this video. I know this video has been very long for all of you, but कोई बात नहीं, we can do all the questions. At least हमने सारे questions अच्छे से practice कर लिए, और बहुत आराम से मैंने आपको questions cover कराने की कोशिश करी है. A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं capacity of vessel. ठीक है, कैसे हो जाएगा 4 लीटर 500 ml, राइट। कन्वर्ट कर लो इसको 4500 ml. सबसे पहले ना यूनिट्स सेम करना बहुत ज़रूरी है, यूनिट सेम कर लो. सो कैपेसिटी हमें एक ग्लास की गिवन है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 25 ml. अगर पूरी वेसल में दही जो है 4 लीटर्स 500 ml आता है, तो कितने ग्लासेस जो 25 ml के कितने भर सकते हैं, कैसे, देयरफॉर नंबर ऑफ क्लासेस, बिल्कुल वही चीज़ डिवाइड करोगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 4500 डिवाइडेड बाय 2500, राइट। सो 1 जा 25, 20, 0, 8 सा 200, 0, अगेन 0, 0, तो ये 0 हो गया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिमाइंडर हमारा आ गया 0. तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्लासेस 180 हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ गए विच कैन बी फिल्ड, राइट. So friends, we have come to the end of this video. I hope you all have understood with all the 11 12 questions of this video, exercise 1.2. So thanks for watching the video. Keep watching so that you can learn more, and we will solve each and every chapter with detailed explanations of each question from the exercise. You can find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends, and don't forget to subscribe the YouTube channel for more updates. Thank you.